Hello everyone, welcome back to our channel. We are discussing a very important topic of cell biology, that is membrane structure. इस लेक्चर सीरीज में हम सेल बायो के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मेम्ब्रेन के एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, दैट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, दैट इज लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स. तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं दे आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स. ओके, सो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, in the last lecture we have discussed about three type of membrane protein: peripheral membrane proteins, the second one is integral membrane proteins, and the third one is lipid anchored or lipid linked, you can also say lipid anchored membrane proteins. So all these are the three categories of membrane proteins. These are part of membrane. Okay, so in the previous lecture, in the previous video, we have discussed about peripheral and integral membrane proteins in detail. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स के बारे में. ठीक है, if you have not seen the previous the lecture about the membrane protein, you can go through that video and understand that these are the three types of membrane proteins. Okay, so our topic today is lipid anchored proteins या lipid linked proteins. ठीक है, तो हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा था in the last lecture कि how all these proteins are present in the plasma membrane. So suppose this is your lipid bilayer. So this is the bilayer. Okay, and here we know that these hydrocarbon chains are there. Okay, and suppose here we have a protein. So this is the membrane, the lipid bilayer. Okay, this is, let's say this is a fatty acid chain or a hydrocarbon chain. Okay, and this is protein. Okay? अब समझते हैं कि लिपिड लिंक्ड जो प्रोटीन्स है वो क्या होते हैं. सपोज ये आपका एक प्रोटीन है एंड दिस इज, let's say this is the cytosolic side of the membrane. This is the cytosolic side. Oops, this is the cytosolic side of membrane. Okay, so this protein which is present on the cytosolic side of the membrane, if this protein wants to attach to the membrane, how this protein will be attached? This protein will be attached to the membrane through a covalent linkage. ठीक है, this protein is attached to the membrane is or associated with the membrane with the help of the fatty acid chain of the lipid present inside this membrane. We know कि this, ये जो आपकी membrane है ये किससे मिलके बनी हुई है? ये आपके लिपिड से मिलके बनी हुई है. ठीक है, इसको भी हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मेम्ब्रेन लिपिड्स क्या होते हैं. ये आपके लिपिड्स प्रेजेंट है और ये आपकी टेल्स होती हैं, फैटी एसिड चेन्स. ठीक है, तो सपोज ये आपकी फैटी एसिड चेन या हाइड्रोकार्बन चेन है और इस चेन की हेल्प से ये जो प्रोटीन है वो अटैच है. और इस अटैचमेंट की, ये जो अटैचमेंट होता है वो कैसा अटैचमेंट होता है? कोवैलेंट अटैचमेंट होता है. दिस प्रोटीन इज लिंक्ड टू द मेम्ब्रेन और joined to the membrane with the help of covalent attachment, covalent linkage to this fatty acid present in the membrane. ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे? इस प्रोटीन को आप एक कहोगे लिपिड एंकर्ड प्रोटीन. लिपिड एंकर्ड प्रोटीन. अब लिपिड एंकर क्यों कहा है?
बिकॉज ये जो प्रोटीन है जब ये मेम्ब्रेन से अटैच होता है, मेम्ब्रेन से जब वो एसोसिएट होता है तो उसको एंकर कौन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, मेम्ब्रेन से अटैच होने के लिए लिपिड प्रोवाइड करता है। इस लिपिड में प्रेजेंट जो चेन्स हैं, हाइड्रोकार्बन चेन्स, वी हैव सीन, यू कैन सी द प्रीवियस लेक्चर ऑन द मेम्ब्रेन लिपिड्स, जहां पे हमने देखा है कि किस तरीके से लिपिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है, ये फैटी एसिड चेन जो होती है आपकी लिपिड की, उससे उसकी हेल्प से ये मेम्ब्रेन से अटैच होता है और इसीलिए इसको हम कहते हैं लिपिड एंकर प्रोटीन्स। तो ये लिपिड जो है मेम्ब्रेन को एक एंकर या एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर अटैचिंग विद द मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। So let us discuss some important properties of these type of protein. First of all, these proteins are located on the surface of cell membrane. तो ये सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. What does that mean? जैसे कि हमने देखा था कि there are two other category of protein, peripheral membrane protein and integral membrane protein. तो पेरिफेरी में हमने देखा था कि जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स they are present on the periphery. They are present on the periphery of the surface. कि ये जो प्रोटीन है पेरिफेरल, ये इस तरीके से आपकी सरफेस पे प्रेजेंट होंगे. These are called peripheral membrane proteins. ठीक है. इंटीग्रल में हमने देखा था कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रैवर्स करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इनको आप क्या कहते हो, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन. और इसकी भी फिर हमने दो कैटेगरीज देखी थी, सिंगल मेम्ब्रेन स्पेनिंग और मल्टीपल मेम्ब्रेन स्पेनिंग. ओके, so this is peripheral, this is integral, and this is lipid anchor. So this lipid anchor protein, they do not cross this membrane. ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते हैं. ओके, नाउ दीज, अब ये जो प्रोटीन्स हैं, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों फिर अगर ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं तो फिर ये पेरीफेरली क्यों नहीं. देखिए क्या होता है कि ये सरफेस पे प्रेजेंट तो है, बट ये सरफेस पे प्रेजेंट होने के साथ साथ यहाँ मेम्ब्रेन लिपिड्स में प्रेजेंट जो फैटी एसिड चेन्स होती हैं उनके साथ क्या करते हैं, एक तरीके का एसोसिएशन करते हैं. ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन लिपिड से एक तरीके से लिंक होते हैं. ठीक है, अगर हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन पेरीफेरी पे प्रेजेंट जरूर होते हैं, बट इस तरीके का कोई कोवेलेंट अटैचमेंट फॉर्म नहीं करते, वो नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं. पेरिफेरल और जो आपके इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, दे आर नॉट कोवेलेंटली अटैच्ड टू द लिपिड्स. ठीक है, दे आर नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड. ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. अच्छा, तो ये सरफेस पे आपके प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन की. अब ये जो सरफेस या तो साइटोसोलिक भी हो सकती है या फिर एक्सोप्लाज्मिक. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ साइटोसोलिक साइड पे ही होंगे या फिर दोनों साइड्स पे हो सकते हैं. जैसे कि ये जो आपका प्रोटीन है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, which we have indicated with this red color, this is a lipid anchored protein. और ये किस साइड पे प्रेजेंट है आपका, साइटोसोलिक साइड पे. दिस इज प्रेजेंट ऑन द साइटोसोलिक साइड. ओके, अब ये जो प्रोटीन है आपका इस तरफ भी प्रेजेंट हो सकता है, ऑन दिस साइड, दैट इज द एक्सोप्लाज्मिक साइड. ठीक है, नेक्स्ट characteristic. These lipid anchored proteins are anchored in one or the other leaflet of membrane through covalent attachment to the hydrocarbon chain. ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ये किसी भी एक लीफलेट, दिस इज द आउटर लीफलेट, दिस इज आउटर लीफलेट एंड दिस इज इनर लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन. दो लीफलेट्स होती हैं, तो ये किसी भी लीफलेट से एंकर हो सकते हैं और जो एंकरिंग होगी, अटैचमेंट होगा, वो कैसा होगा, कोवेलेंट होगा. और कोवेलेंट अटैचमेंट किसके साथ होगा, हाइड्रोकार्बन चेन. जैसे कि हमने देखा यहाँ पे ये फैटी एसिड चेन है इस डायग्राम में, दिस इज द फैटी एसिड चेन या हाइड्रोकार्बन चेन. तो इस तरीके से ये जो आपके प्रोटीन्स हैं इन फैटी एसिड चेन्स के साथ कोवेलेंट अटैचमेंट फॉर्म करते हैं और फिर ये मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं. ओके, so with the help of this diagram we will understand कि what are the different type of lipid anchored proteins. तो हम types की बात करते हैं कि कौन कौन से types के आपके lipid anchored proteins होते हैं. ठीक है, और ये जो एंकर होता है वो कौन प्रोवाइड करता है. तो द फर्स्ट इज एसाइलेटेड एसाइलेटेड प्रोटीन्स. ओके, द सेकंड वन इज phenylated proteins, and the third one is GPI
anchored proteins. So these are the three types of lipid anchored protein: acylated protein या fatty acylated proteins भी you can say, renylated protein and GPI anchored protein. So you have to understand these different type of lipid anchored protein. So with the help of this diagram, we can very easily understand what are these different types of lipid anchored protein. So this is the cell membrane. Okay. So this is the first category, acylation. Okay. So this is the first one. This is the second one, and this is the third one. Okay. So these three type of anchors are provided. What is this anchor? तो ये जो आपके तीनों टाइप्स हैं फॉर दिस एसाइलेशन, प्रेनाइलेशन एंड जीपीआई एंकर, ये सब क्या होते हैं? एक तरीके के ये प्रोटीन मॉडिफिकेशंस होते हैं. ठीक है, दीज आर प्रोटीन मॉडिफिकेशंस, या यू कैन से पोस्ट ट्रांसलेशनल modifications. Post-translational modifications. Okay, तो what are post-translational modification? Translation मतलब क्या होता है आपका? प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन आफ्टर सिंथेसिस. कुछ मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग सिंथेसिस भी होते हैं, कुछ आफ्टर सिंथेसिस होते हैं. अभी मॉडिफिकेशन क्या है कि जो ये प्रोटीन्स हैं, मॉडिफिकेशन में हम मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई द प्रोटीन बाय अटैचमेंट विथ लिपिड्स. डिफरेंट टाइप के लिपिड से हम उसको अटैच करके मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, तो एक तरीके के ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं. तो चलिए पहले हम देखते हैं ये एसाइलेशन, प्रेनाइलेशन और जीपीआई एंकर क्या होता है. देन वन बाय वन वी विल डिस्कस द एसाइलेटेड प्रोटीन्स, प्रेनाइलेटेड प्रोटीन्स एंड जीपीआई एंकर प्रोटीन. तो हम पहले बात करते हैं एसाइलेशन या फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन भी यू कैन से. तो एसाइलेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन है उसको एक फैटी एसिड से लिंक किया जाता है. ठीक है, अब ये प्रोटीन और फैटी एसिड, ये जो आपका प्रोटीन है इसको हम किससे अटैच करेंगे? एक फैटी एसिड से. ओके, और इनके बीच में क्या होगा? एक कोवैलेंट अटैचमेंट, कोवैलेंट लिंकेज. ठीक है, अब ये इसी और इस फैटी एसिड के कोवैलेंट अटैचमेंट के बाद इन प्रोटीन्स को हम कहेंगे एसाइलेटेड प्रोटीन्स. ठीक है, क्लियर है कि एसाइलेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? व्हेन यू विल अटैच दीज प्रोटीन्स विद द फैटी एसिड फॉर्मिंग दिस कोवैलेंट बॉन्ड, तो दिस प्रोटीन इज कॉल्ड द एसाइलेटेड प्रोटीन. ठीक है, ये फैटी एसिड जो है आपके क्या हो सकते हैं? दिस फैटी एसिड्स कुड बी सपोज मेरिस्टेट या फिर अमीटेट. ठीक है, मेरिस्टेट जो है आपका 14 कार्बन होता है, ये 16 कार्बन होता है, दोनों ही आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. अब देखिए एसाइलेशन, सपोज दिस इज योर प्रोटीन. ठीक है, दिस इज द प्रोटीन which is present on the cytosolic side, and this protein wants to associate with the membrane. Ab this protein is present, this is a cytosolic protein. Okay, this is a cytosolic protein and this protein wants to associate with the membrane. इस प्रोटीन को अभी यहाँ मेम्ब्रेन से अटैच होना है. तो ये कैसे अटैच होगा? दिस प्रोटीन विल टेक द हेल्प ऑफ एन एंकर. ये किसी को सपोर्ट लेगा, किसी का एंकर या सपोर्ट लेगा. किसका एंकर? This is your fatty acid, fatty acyl chain or hydrocarbon chain. Okay, this is a hydrocarbon chain or fatty acid chain. So this is the fatty acid chain and this is the cysteine residue. Cysteine is an amino acid. ठीक है, तो ये cysteine residue यहाँ पे present है प्रोटीन के इस टर्मिनल पे, और इस cysteine residue और इस fatty acid chain के बीच में यहाँ पे एक लिंकेज फॉर्म होगा जिसको आप कहोगे कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है, और इस बॉन्ड की हेल्प से ये प्रोटीन मेम्ब्रेन से
अटैच होगा या लिंक होगा, और इस प्रोटीन को अब आप क्या कहोगे, एक लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। और एक ऐसा प्रोटीन है साइटोसोलिक साइट पे प्रेजेंट है। Okay, this is another example. The second one is the phenylated protein. अब you can understand कि यहाँ पे इस modification का क्या रोल है कि this modification helps the protein to associate with the membrane on either side of the membrane, either cytosolic side or the exterior or exoplasmic side. ठीक है, तो this is the first one, acylated protein. यहाँ पे ये fatty acid जो है वो आपका fatty acid यहाँ पे, क्योंकि ये जो है आपका ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज फॉस्फोलिपिड, वी हैव डिस्कस्ड, ये फॉस्फेट ग्रुप है आपका, और ये दोनों क्या है आपकी, ये आपकी हाइड्रोकार्बन या फिर फैटी एसाइल चेन्स है। ठीक है, तो ये फैटी एसाइल चेन जो है वो किसकी हो सकती है, या तो आपकी फॉर एग्जांपल ये मेरिस्टेट हो गया इसमें, या फिर ये पामेटेट हो गया। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं सेकंड, ये हमने देख लिया एसाइलेटेड प्रोटीन। नेक्स्ट इज प्रेनाइलेटेड प्रोटीन। ठीक है, तो प्रेनाइलेटेड प्रोटीन, व्हाट इज प्रेनाइलेशन? अब यहाँ पे जो आपका अटैचमेंट होगा प्रोटीन का, लेट मी रब इट, ओके, तो दिस वन इज द प्रेनाइलेशन। इसको आप क्या कहोगे, प्रेनाइलेशन। तो प्रेनाइलेशन का मतलब क्या होता है, प्रेनाइलेशन मतलब यहाँ पे जो आपके प्रोटीन्स होंगे, वेट अ मिनट, ओके, सो प्रेनाइलेटेड प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रेनाइलेटेड प्रोटीन्स में यहाँ पे जो प्रोटीन्स का लिंकेज होगा ये किससे होगा, ये प्रेनाइल ग्रुप से होगा। ओके, wait a minute, so here the attachment of proteins will be with prenyl groups. Now what are these prenyl groups? ठीक है, प्रेनाइल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये आपके आइसोप्रेनॉइड्स होते हैं, दे आर आल्सो क्लास ऑफ लिपिड्स, ब्रांच लिपिड्स, आइसोप्रेनॉइड्स, यू कैन से टर्पिनॉइड्स। ठीक है, तो प्रेनाइल ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं आपके, एग्जांपल फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो फॉर प्रेनाइल ग्रुप्स। वन इज farnesyl and the another one is minute, the another one is geranyl, geranyl। ठीक है, ये आपका 15 कार्बन होता है, दिस वन इज 20 कार्बन, बोथ आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे हमने मेरिस्टेट और पामेटेट का एग्जांपल यहाँ पे लिया था कि मेरिस्टेट और पामेट, जो आपका पामेटिक एसिड है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, दोनों ही अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, फार्नेसाइल एंड जेरानाइल, जेरानाइल ये दो एग्जांपल्स हैं आपके प्रेनाइल ग्रुप से, ये आइसोप्रेनॉइड्स होते हैं बेसिकली, और यू कैन से टर्पिनॉइड्स, दे आर आल्सो अ कैटेगरी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स का अटैचमेंट होगा वो किससे होगा, इन प्रेनाइल ग्रुप से होगा। फॉर एग्जांपल या तो फार्नेसाइल या फिर जेरानाइल, जेरानाइल। अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट कैटेगरी में हमने देखा था एसाइलेटेड प्रोटीन्स में कि प्रोटीन्स आर अटैच टू द फैटी एसिड्स, मेरिस्टेट और पामेटेट। यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन्स किससे अटैच होंगे, आपके प्रेनाइल ग्रुप से। और यहाँ पे भी जो अटैचमेंट होगा प्रोटीन और प्रेनाइल ग्रुप्स के बीच में, वो भी कैसा अटैचमेंट होगा आपका, कोवेलेंट अटैचमेंट या कोवेलेंट लिंकेज। ठीक है, सो हियर प्रेनाइलेशन, ये भी क्या है आपका, एक प्रोटीन है, दिस इज ऑल्सो प्रोटीन, साइटोसोलिक प्रोटीन है, साइटोसोलिक साइट पे प्रेजेंट है। द सेकेंड वन प्रोटीन इज हियर, एंड दिस प्रोटीन, ये जो है ये प्रोटीन का सपोज ये आपका एन टर्मिनल है, तो डेफिनेटली ये कौन सा टर्मिनल होगा, सी टर्मिनल होगा। तो प्रोटीन का ये सी टर्मिनल है, यहाँ पे ग्लाइसिन रेसिड्यू है, और इस प्रोटीन के इस ग्लाइसिन रेसिड्यू से यहाँ पे ये जो आपका प्रेनाइल ग्रुप है, वट एवर कैन बी फार्नेसाइल, जैसा कि हमने देखा फार्नेसाइल या जेरानाइल, जेरानाइल, तो इससे ये जो प्रोटीन है वो अटैच्ड है, और किसके थ्रू अटैच्ड है, यहाँ पे भी एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन कि कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच में कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ पे जो एसाइलेशन में देखना है कि प्रोटीन और
इस फैटी एसिड चेन के बीच में कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे हमें देखना है कि प्रेनाइलेशन में कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड प्रोटीन और इस फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन के बीच में फॉर्म होगा. ओके, सो दिस इज द प्रेनाइलेशन. ओके, द थर्ड वन, थर्ड है आपका GPI एंकर्ड प्रोटीन. So this is the third one, GPI anchored protein. ठीक है. अब GPI anchored protein की बात करें तो this is the GPI anchor. अब GPI anchor का फुल फॉर्म क्या होता है? This is ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, GPI, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंकर. तो अब ये किस चीज का एंकर है देखते हैं. यहाँ पे जैसे हमने देखा जो फर्स्ट एसाइलेशन में कि द एंकर वाज प्रोवाइडेड बाय द फैटी एसिड मेरिस्टेट और पामिडेट. यहाँ पे प्रेनाइलेशन में हमने देखा कि जो एंकर है वो कौन प्रोवाइड करेगा प्रोटीन्स को, प्रेनाइल ग्रुप्स, फार्नेसाइल और जेरानाइल. जेरानाइल थर्ड कैटेगरी है. यहाँ पे दिस इज द प्रोटीन. एक डिफरेंस आप लोग और देख सकते हो कि ये प्रोटीन जो है कौन सा साइड पे प्रेजेंट है, साइटोसोलिक साइड पे नहीं है, ये आपके ये एक्सटीरियर साइड पे है, एक्सोप्लाज्मिक साइड पे. तो जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन ध्यान रखना है, ये दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर साइड, एक्सोप्लाज्मिक साइड, नॉट ऑन द साइटोसोलिक साइड. ओके, तो जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स की बात करें, दिस इज द प्रोटीन, दिस इज द एन टर्मिनस ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज द सी टर्मिनस ऑफ प्रोटीन. अब इस प्रोटीन का ये जो प्रोटीन है इसे इस मेम्ब्रेन से एसोसिएट होना है. एंड हाउ दिस प्रोटीन विल एसोसिएट विद द मेम्ब्रेन? विद द हेल्प ऑफ दिस GPI anchor. With the help of this GPI anchor, this protein will attach to the membrane. Okay. Now what are these structures? यहाँ पे कुछ, अब ये अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, ये GPI anchor है. अब ये GPI एंकर किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? देखिए, GPI एंकर जो है सेल टू सेल वेरी करता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सब में कॉमन होती है. फॉर एग्जाम्पल दिस, ये क्या है आपका, एक मेम्ब्रेन लिपिड है. ओके, तो दिस मेम्ब्रेन लिपिड इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल. ठीक है, phosphatidyl inositol is a membrane lipid. This one is a membrane lipid, and these are the two fatty acid. These are the two fatty acid, the red color, the two fatty acid chain of the phosphatidyl inositol. Okay, phosphatidyl inositol का structure you can watch in the previous lecture, जिसमें हमने membrane lipids के बारे में देखा. You can watch कि phosphatidyl inositol का structure क्या होता है, किन components से मिलके बना होता है. So this is a phosphatidyl inositol. What are these green structures? ये जो green structures हैं ये आपके ये sugar residues हैं. ठीक है. अब यहाँ पे जनरली टेट्रासेकेराइड होता है, यहाँ पे दो ही मेंशन है, ये वेरी कर सकता है. जनरली यहाँ पे आपके मैनोज रेसिड्यूज होते हैं और एक ग्लूकोसामिन होता है. ठीक है. व्हाट इज दिस ब्लू स्ट्रक्चर? तो ये है आपका इथेनॉलमिन फॉस्फेट. ठीक है, या फॉस्फोइथेनॉलमिन. तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, इस ब्लू रिंग से लेके इस रेड रिंग अलोंग विद दिस रेड टेल्स, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जीपीआई एंकर. और ये जीपीआई एंकर जो है इसकी हेल्प से ये प्रोटीन जो है आपका मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका जो ब्लू रिंग है, और ये जो प्रोटीन, जहाँ पे जो प्रोटीन का सी टर्मिनल है, ध्यान रखना है कि ये जो जीपीआई एंकर होता है वो सी टर्मिनल पे अटैच होता है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बनेगा आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड. ये सारे प्रोटीन्स जो हैं आपकी किसके थ्रू अटैच होते हैं? यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा किसके बीच में आपके, दिस, वेट अ मिनट. Okay, so here this protein and this blue color ring, that is ethanolamine phosphate, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, that is called the covalent bond. ठीक है. तो दिस इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ लिपिड एंकर्ड प्रोटीन. तो हमने तीनों के बारे में डिस्कस किया कि एसाइलेशन यानी कि एसाइलेटेड प्रोटीन्स, एसाइलेशन प्रोटीन्स जब आपके फैटी एसिड से लिंक होंगे बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, तब आप उनको एसाइलेटेड प्रोटीन्स कहते हैं. ये साइटोसोलिक साइट पे प्रेजेंट प्रोटीन्स का ही एसाइलेशन होता है. प्रेनाइलेशन, जब प्रोटीन्स आपके किससे लिंक होंगे, प्रेनाइल ग्रुप से बाय द कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसको आप कहोगे प्रेनाइलेशन. ठीक है. प्रेनाइल ग्रुप्स फार्नेसाइल और जेरानाइल, जेरानाइल ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. ठीक है. मेरिस्टेट और पामेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. थर्ड कैटेगरी ऑफ लिपिड लिंक प्रोटीन इज जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन. तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है आपका ब्लू कलर से जो इंडिकेटेड है, द प्रोटीन इज लिंक टू द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ दिस जीपीआई एंकर. ठीक है. इस जीपीआई एंकर की हेल्प से प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है.
So this is about all the three categories. Okay, let us take one by one the different type of protein and some examples also. Okay, so now here in this diagram we can understand the type of linkage. हमने ये तो देख लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, बट किस तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, किस तरीके के कोवेलेंट लिंकेजेस फॉर्म करते होते हैं जब प्रोटीन एक फैटी एसिड से लिंक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीन तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। एक तो आपका एमाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, दूसरा आपका थायो ईथर, दीज आर और कोवेलेंट बॉन्ड्स, और एक होता है आपका थायो ईस्टर। तो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ये किसके बीच में फॉर्म होते हैं आपके, प्रोटीन जब लिपिड से अटैच होता है। तो प्रोटीन और लिपिड के बीच में इन तीन तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, एमाइड बॉन्ड, थायोईथर बॉन्ड एंड थायोईस्टर बॉन्ड। Okay, so with the help of with this diagram we can understand ki what are these bonds and where they are being formed. Okay, the first one, so first one A, इसमें अगर हम देखें तो this is the protein. Okay, this is the protein and here we have the N terminus of protein. Okay, so this is the N terminus, N terminal, N terminal. Okay, now what is this? This is the fatty acid chain. So यहाँ पे ये अमीनो ग्रुप है एंड व्हाट इज दिस CO ग्रुप। अगर आपने फैटी एसिड्स मेम्ब्रेन लिपिड्स वाला लेक्चर देखा होगा, यू कैन अंडरस्टैंड कि हमने उसमें देखा था कि जो आपके फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, यहाँ पे एक लिपिड प्रेजेंट है और उसमें आपकी टेल्स होती हैं। सपोज जैसे यहाँ पे ये आपका ये हेड ग्रुप होता है और यहाँ पे इस तरीके से चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये CO क्या है, क्योंकि फैटी एसिड को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, RCOOH। ठीक है, टर्मिनल ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, तो ये आपका वो है। यहाँ पे इस अमीनो ग्रुप और जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है फैटी एसिड का, इसके बीच में कौन सा लिंकेज फॉर्म हो रहा है, अमाइड लिंकेज। ठीक है, बिटवीन टर्मिनल अमीनो ग्रुप एंड मेरिस्टिक एसिड। यहाँ पे एसिड कौन सा है, फॉर एग्जांपल मेरिस्टिक एसिड है। ठीक है, एंड टर्मिनल पे जो ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है वहां पे ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड के साथ ये बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड है, ये अमाइड लिंकेज। और ये कैसा लिंकेज है, ये एक कोवेलेंट लिंकेज है। और इसकी हेल्प से ये जो प्रोटीन है आपका साइटोसोलिक प्रोटीन मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन को एंकर किसने प्रोवाइड किया है, ये फैटी एसिड है, इसका नाम है आपका मेरिस्टिक एसिड। इस मेरिस्टिक एसिड, ये मेरिस्टिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। ठीक है, तो दिस फैटी एसिड मेरिस्टिक एसिड प्रेजेंट embedded in the membrane will help in the attachment of this protein to the membrane. ठीक है, और किस अटैचमेंट कैसे होगा, इन दोनों के बीच में प्रोटीन और फैटी एसिड के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एमाइड बॉन्ड, और इसके थ्रू ये मेम्ब्रेन एसोसिएट होगा। ओके, नेक्स्ट वन, तो दिस इज, ये क्या है आपकी, ये जो इस प्रोटीन को आप क्या कहोगे, दिस इज द फैटी एसाइलेटेड। जो फर्स्ट कैटेगरी हमने देखी थी फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट। ओके, फैटी एसाइलेशन में हमने देखा था कि फैटी एसाइलेशन दो तरीके का होता है, या तो फैटी एसिड मेरिस्टिक एसिड हो सकता है या फिर पामेटिक ग्रुप हो सकता है। ठीक है, पामेटेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे वंस अगेन द फैटी एसिड क्या होगा, यहाँ पे आपका फैटी एसिड विल बी पामेटेट। दिस इज द फैटी एसिड। ठीक है, मेम्ब्रेन है ये आपका, दिस इज द मेम्ब्रेन and in this membrane this is on the outer leaflet और cytosolic leaflet, sorry this is the cytosolic leaflet। ये आपका ध्यान रखना है कि this is the cytosolic side and these proteins are present on the cytosolic side। तो यहाँ पे this fatty acid that is palmitate, और इस fatty acid में once again this is the, यहाँ पे भी हमने देखा ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, और यहाँ पे ये क्या है आपका, प्रोटीन है। Okay, this is the protein and this protein will link with this fatty acid। ठीक है, और यहाँ पे S क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका अमीनो एसिड होगा वो होगा सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन सल्फर होता है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा इनके बीच में, यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको आप क्या कहोगे, थायो ईस्टर लिंकेज बिटवीन द सिस्टीन
एंड द पामेटिक एसिड। तो सिस्टीन में सल्फर होता है, तो ये उसका सल्फर है, और फैटी एसिड के बीच में यहाँ पे आपका ये थायो ईस्टर लिंकेज, सॉरी हाँ थायो ईस्टर लिंकेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, एक ये भी आपका फैटी, वेट अ मिनट, दिस इज ऑल्सो फैटी this is also fatty acylated protein. Okay, this one is also fatty acylated protein. Okay, the third one. So this is the third one. So these two are from the first category. This A and B, ये दोनों ही कैसे हैं आपके एसाइलेटेड प्रोटीन्स हैं। लिपिड एंकर्ड कैटेगरी में हमने देखा था कि फर्स्ट जो आपकी कैटेगरी है वो क्या है, एसाइलेटेड। दिस इज द एसाइलेटेड। तो एसाइलेटेड में ये फैटी एसिड, दोनों ही एसाइलेटेड ही हैं। यहाँ पे एक में फैटी एसिड मेरिस्टिक एसिड प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है आपका पामिटेट प्रेजेंट है। ओके ओके, द नेक्स्ट वन, सेकेंड जो कैटेगरी दैट इज द प्रेनाइलेटेड प्रोटीन। प्रेनाइलेटेड प्रोटीन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो आपके फैटी एसिड्स होंगे ये प्रेनाइल ग्रुप्स होंगे, प्रेनाइल ग्रुप्स। अब ये प्रेनाइल ग्रुप्स क्या हो सकते हैं, फार्नेसाइल और जेरानाइल, जेरानाइल ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पे जो प्रेनाइल ग्रुप्स हैं, दिस इज द प्रोटीन एंड द प्रोटीन विल एसोसिएट विद द मेम्ब्रेन बाय फॉर्मिंग द कोवेलेंट लिंकेज विद द प्रेनाइल ग्रुप्स। तो ये प्रेनाइल ग्रुप्स हैं आपके, और यहाँ पे दिस इज द प्रोटीन और सल्फर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे कौन सा आपका अमीनो एसिड है प्रोटीन का, सिस्टीन अमीनो एसिड है। तो सिस्टीन अमीनो एसिड और ये जो प्रेनाइल ग्रुप है, इनके बीच में यहाँ पे कौन सा लिंकेज फॉर्म होगा, ये जो लिंकेज है दैट इज द थायो ईथर लिंकेज। ये भी कैसा लिंकेज है आपका, कोवेलेंट लिंकेज। तो थायो ईथर लिंकेज बिटवीन सिस्टीन ग्रुप, सिस्टीन ग्रुप यहाँ जो सल्फर प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका सिस्टीन अमीनो एसिड होगा। ठीक है, सिस्टीन अमीनो एसिड एंड द प्रेनाइल ग्रुप। तो इन दोनों के बीच में थायो ईथर लिंकेज होगा, और ये लिंकेज कैसा होगा आपका, कोवेलेंट लिंकेज होगा। और इस प्रोटीन को आप क्या कहोगे, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड प्रेनाइलेटेड, क्योंकि इस प्रोटीन को हमने किससे लिंक किया हुआ है, प्रेनाइल ग्रुप से, बाय फॉर्मिंग थायो ईथर लिंकेज बिटवीन द सिस्टीन अमीनो एसिड एंड द प्रेनाइल ग्रुप। दीज आर द टू कैटेगरीज। ये द लास्ट वन। तो इस तरीके से हमने देखा कि कौन से कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। अगर यहाँ पे आपका एसाइलेटेड प्रोटीन है तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट में अगर आप देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे एमाइड बॉन्ड है, ये आपका एमाइड बॉन्ड है। ठीक है, अगर फैटी एसाइलेटेड प्रोटीन में ही अगर आपका फैटी एसिड पामेटेड है तो बॉन्ड कौन सा बन रहा है, थायोएस्टर, ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे जब प्रोटीन प्रेनाइल ग्रुप से अटैच होता है तो कौन सा लिंकेज फॉर्म होता है, थायो ईथर लिंकेज। थायो थायो ध्यान रखना आपको, सल्फर अगर होगा तो थायो लिंकेज होता है। ठीक है, यहाँ थायो ईस्टर है, यहाँ थायो ईथर है। यहाँ पे अमीनो एसिड सिस्टीन और प्रेनाइल ग्रुप के बीच में थायो ईथर लिंकेज फॉर्म हो रहा है। ये तीनों लिंकेजेस कैसे हैं आपके, कोवेलेंट लिंकेजेस या कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इन कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू प्रोटीन जो है लिपिड से लिंक होता है और मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है। ओके, द लास्ट वन, so this is okay, so this is the GPI anchored protein. GPI anchored protein, glycosyl phosphatidyl inositol anchored protein. अब इन प्रोटीन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी के लिपिड एंकर प्रोटीन से, क्योंकि दीज प्रोटीन्स आर जनरली ऑन द एक्सोप्लाज्मिक सरफेस, नॉन साइटोसोलिक साइट। तो ये एक्सोप्लाज्मिक सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो जीपीआई एंकर है वो क्या होता है। ओके, so with the help of this diagram we can understand, this is a little diagram. So this is suppose a protein, okay, and this is your membrane, and this side is the exoplasmic side,
This is the exoplasmic side and this is the cytosolic side. Okay, here we have this GPI anchor. So this is the protein और यहाँ पे ये प्रोटीन का आपका C terminus. So this is the C terminus of protein. And what are these structures? जैसे हमने पहले ही डायग्राम में देखा था, ये है आपका इथेनॉल अमीन फॉस्फेट. Here we have 4 residues 1, 2, 3 and 4. ठीक है. So this is your tetrasaccharide and the last one, this is phosphatidyl inositol. This is phosphatidyl inositol. Okay. देखिए क्या होता है जीपीआई एंकर. इसके पहले भी हमने डायग्राम में देखा था. यू कैन ऑल्सो सी दिस डायग्राम. बस इस डायग्राम में ज्यादा बेटर इट विल बी क्लियर. So this GPI anchor is what basically? GPI anchor. ठीक है. तो यहाँ पे the protein, here we have this protein. यहाँ पे आपका protein, this is the protein and we have this lipid phosphatidyl inositol. ठीक है. तो the protein will be linked to this. ठीक है. हम लिपिड एंकर प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पे प्रोटीन जो है इस लिपिड से एंकर होगा और जो एंकर है वो कौन प्रोवाइड करेगा? जीपीआई. अभी जीपीआई एंकर का क्या स्ट्रक्चर होता है? ये थोड़ा वेरी कर सकता है बट कुछ चीजें कॉमन होती हैं सब में. फॉर एग्जाम्पल इसमें होगा आपका एक इथेनॉलमीन फॉस्फेट या फॉस्फोइथेनॉलमीन. दूसरा आपका एक टेट्रासैकेराइड होता है. शुगर रेसिड्यूज जो हैं दे कैन वेरी. saccharide and phosphatidyl inositol. Okay, this is the phosphatidyl inositol. Okay, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? टेट्रासैकेराइड में क्या होते हैं? इसमें मैनोज रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं 3 और एक आपका प्रेजेंट होता है ग्लूकोसामिन, दैट इज एन अमीनो शुगर. ठीक है. तो ये होता है आपका जीपीआई एंकर. इथेनॉलमीन फॉस्फेट, टेट्रासैकेराइड, sugar residues vary कर सकते हैं from cell to cell and the lipid is phosphatidyl inositol. तो ये प्रोटीन जो है इस phosphatidyl inositol से लिंक होगा via this GPI anchor. अब यहाँ पे ये जो आपका ETP है इथेनॉलमीन फॉस्फेट, इसके और प्रोटीन के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज द amide bond. The bond that is formed between the ethanolamine phosphate and the C terminus of protein is the amide bond and this is a covalent bond. Okay. This bond is basically covalent bond and the protein, this protein will attach to the membrane. This is the protein, this is the protein and this protein with the help of this anchor. ये जो आपका पूरा एंकर है जीपीआई एंकर, इस पूरे एंकर की हेल्प से, ये जो आपका पूरा एंकर है इसकी हेल्प से this protein will attach to the membrane with the help of this anchor. और ये एंकर क्या है आपका? इन रेसिड्यूज से मिलके बना हुआ है. और यहाँ पे जो इथेनॉलमीन फॉस्फेट है, दिस वन इथेनॉलमीन फॉस्फेट, ये प्रोटीन के सी टर्मिनस पे प्रेजेंट अमीनो एसिड के साथ अमाइड बॉन्ड फॉर्म करता है एंड दैट बॉन्ड इज द कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट लिंकेज. ठीक है. तो दिस इज द थर्ड कैटेगरी और थर्ड टाइप ऑफ लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, द जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन. ठीक है. So these are the 3 different type of lipid anchored proteins. We can take some examples. जैसे कि अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लिपिड एंकर्ड प्रोटीन एसाइलेटेड प्रोटीन्स.
तो कुछ हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इज SRC। तो SRC जो जीन है, इसका प्रोडक्ट होता है SRC प्रोटीन। तो बेसिकली SRC प्रोटीन जो है इसका मेरिस्टोइलेशन होता है, तो इन प्रोटीन्स को मेरिस्टोइलेटेड प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज प्रेनाइलेटेड। तो प्रेनाइलेटेड प्रोटीन्स में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रैब प्रोटीन, RAS protein, and Rho family of protein, which are basically involved in intracellular sorting and targeting or trafficking. Okay, the third one is the GPI anchored. तो GPI anchored का आप एग्जाम्पल ले सकते हो द प्रायोन प्रोटीन, ठीक है। ये GPI एंकर के थ्रू मेम्ब्रेन से अटैच होता है प्रायोन प्रोटीन, and basically this is the causative agent of mad cow disease. So these are some examples of all the lipid anchored protein, ठीक है। दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग अच्छे से इसमें सारे बॉन्ड्स को देखिए, सारे जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, किस अमीनो एसिड पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कौन सा फैटी एसिड कोवेलेंट अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड लिंक प्रोटीन। So thanks for watching. Please subscribe to our channel for the regular updates. Thank you.